फॉर्मेलिटी दिख रही है क्या मैडम? मत बताइए, वैसे बता तो चुकी होंगी यार। Yes, sir. Actually, sir, whatever time I got since yesterday, now, sir, I've gone through the. नहीं, आपको कुछ abnormality, unusualness कुछ दिख रहा है क्या? सर, इसमें ऊपर का जो पेन है, what is the way it is signed, sir, वो इसमें change है। नहीं, ऊपर का पेन, नीचे का signature are in the same ink. Yes. Whereas the remaining part of the body is in the different ink. ठीक है सर। कई बार हमको ये होता है कि हम लोग लिख रहे हैं और लिखते लिखते पेन की इंक खत्म हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, देन वी स्टार्ट यूजिंग द डिफरेंट पेन। तो सर अगर नीचे ऐसी स्थिति थी तो नीचे के सिग्नेचर भी उसी इंक से क्यों नहीं है जिस इंक में पूरी बॉडी लिखी गई है, गिविंग द डिटेल्स ऑफ द सो कॉल्ड सर्च। ये रोजनाम ऐसा कहा जाता था कि पहले रोजनामचा खाली छोड़ दिए जाते थे तो आराम से भर लेंगे। फिर आप लोगों ने उस आदत को ठीक करने के लिए कंप्यूटराइज किया, या पता नहीं मॉडर्नाइज करने के लिए क्या, मुझे नहीं मालूम किस लिए किया, पर ऐसा लगता हरकतें नहीं सुधर रही। व्हाट इज योर एक्सपेरिमेंट? हाउ इट कैन बी दैट द अपर पार्ट ऑफ द Panchanama and the signatures are in the same ink, whereas the details of the act done by the authority is in a different ink. Sir, actually, I've spoken to the IU about it, sir. And, sir, I would say, sir, prima facie, it seems that there are two different pillars here. And तो ऐसा कीजिए, हम इसको साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। अगर आप अभी भी कह रहे हैं प्राइमा फेसी, तो यस, बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन वी मस्ट हैव अ साइंटिफिक रिपोर्ट। तो शुड आई सेंड इट टू द साइंटिफिक एफएसएल? सर, माय सबमिशन। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, मुरैना से जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके ऑफिसर्स इस तरीके से बिहेव करेंगे तो then tell them that I am not going to spare anybody. How can he manipulate this document? And still you are saying that prima facie. Fine, yes, I don't want your conclusion because you, I cannot bind you to that since you have admitted, therefore he is guilty. Prima facie, you are correct that yes, there appears to be something which requires further inquiry. I am sending it to the FSL to find it out whether this document is in the same ink or it has been written with different pens. उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं सर, आपको तो अभी कल बताया नहीं है, इसलिए आपको भी नहीं मालूम। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका वो आयोग उस दिन कटनी में और कौन कौन से ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने गया था? सर, I have actually gone through it, sir. Sir, whatever time I had, sir. I find no difficulties. I just wanted, देखिए साहब, एक्चुअली क्या है, I have not called you sir to point out any mistake committed by you. Sir. I have called you to point out the mistakes which are being done by your subordinates under hope and belief that their SP will save them. Yes. Right? तो मैं आपके सबऑर्डिनेट्स की हरकतों को डायरेक्टली 1-to-1 बताना चाहता हूं। That's why you were requested to come down. Right? दूसरी बात, जो असली ग्रीवेंस है मेरे को, to whom the direction was given? Sir, direction was given to you. Did you ever go through the case diary before sending it to the High Court? Sir, it was a standing warrant file. Sir, I've been monitoring the case. Did you ever go through the case diary before sending it to the court? Sir, you took it very easily. Sir, taken for granted answer. हमें तो कुछ करना नहीं है, आईओ ने, सब इंस्पेक्टर ने भेज दो। So if you are dependent on your sub inspector, then be ready to face the consequences of the misdeeds of your sub inspector. I didn't ask the SHO to execute the warrant with a hope and belief that the SP will personally look into the matter. And SP means a person having some responsibility on his shoulders. If the SP are just throwing away the files
टू देयर सबऑर्डिनेट्स, ओके जो तुम करोगे हम भी तुम्हारे साथ टंग जाएंगे फांसी पे। फाइन, बी रेडी फॉर दैट। क्या हमें शौक चढ़ा हुआ है कि एसपी की शक्ल देखनी है? कभी आपने सोचा कि आपको पर्सनल अपीयरेंस का तो ऑर्डर डे 1 पे किया नहीं था, आप ही को डायरेक्शन दिया था, आपने समय मांगा, हमने समय भी दे दिया था। उसके बाद डायरी आई और सारा फर्जीवाड़ा दिख रहा है उसमें, और आपने डायरी भेजने से पहले यू डिडंट टेक द पेन्स ऑफ इवन गोइंग थ्रू द केस डायरी। So this is the concern which you are showing towards the orders passed by the High Court. ये पहले खाली छोड़ के उसमें ये लीपापोती की गई है, and you encourage that by not taking care of everything. What have you to say, sir? Sir, first of all, sir, I offer unconditional apology. I don't want any apology, sir. I'm not your employer. I'm saying again and again. We have, sir. I'm saying again and again that I'm not your employer. Your department may promote you, your department may demote you, your department may terminate you. It is none of my business. I am concerned about the fact that one person is absconding who was a hardcore criminal, even according to you. Yes. Right? So what is your opinion about the background of that person? Sir, he's a hardened criminal, sir. Hardened criminal. How many offences under section 302 were registered against him? On record, I think there are around 15 cases, sir. 15 cases. And how many 302 out of those 15? Sir, I don't have the exact details, sir, as of now. But even according to your information, he was a hardcore criminal, right? He's a hardened criminal. And in this case also, he absconded during the pendency of the trial, and the trial is for 302. You people were sitting idle because ट्रायल कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा? वही आपके डीजीपी मुरैना के केस में एफिडेविट्स पे एफिडेविट्स दे रहे थे कि माय पुलिस डिपार्टमेंट इज वेरी एफिशिएंट। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द एफिडेविट्स व्हिच वर गिवन बाय योर डीजीपी। यू आर अवेयर, you must be aware that all those affidavits were supported by the circulars issued by the PHQ from time to time, right? But you sat over the warrant issued by the trial court. रूप जी को कब वारंट इशू हुआ था ट्रायल कोर्ट का? रूप सिंह जी, योर लॉर्डशिप, ईयर इन द 1992 योर लॉर्डशिप। 92 से वारंट इशू है, 2020 में कोरोना लगने के बाद वो ही वाज अपीयर। पुराना छोड़ दीजिए, माय लॉर्ड, वो तो हमने पेपरों में छपवाने के लिए मना किया, तो तब जाके 95% केसेस में छपना बंद हो गया। नहीं तो आप लोग सबसे पहले काम यही करते थे। चाहता था सिपाही, सेंटर में एसपी बैठ जाता था, दोनों तरफ एडिशनल एसपी बैठ जाते थे, बीच में एक्यूज को खड़ा करके आप लोग पेपरों में छपवाते थे। और जब पूछो ट्रायल में क्या किया, तो सर आदमी फरार हो गया। पकड़ने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया सर। आप लोग क्या अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नौकरी कर रहे हैं सर? प्लीज थोड़ा सा बताएं तो समझ में तो आए सर। What are the duties which are assigned to the police department? तो तकलीफ इस बात की है मेरे को, करते जब जो आप हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, उसका एक भी जवाब नहीं देते और सर झुका के खड़े हो जाते। तो ऐसा काम करते क्यों जिसमें सर झुकाना पड़े? अभी तो मैंने पूछा ही नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के वारंट का क्या हुआ। वो मैंने इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि अगर उसका पहले कोई प्रोसीडिंग चल रही होंगी तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उसके बाद आएंगी उसी डॉक्यूमेंट में, उसी डायरी में। वो डायरी है ही नहीं है कहीं पर, और ये नई डायरी बनाई गई है। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट का वारंट क्यों आपने उठा के कचरे में फेंक दिया। कैसे सर? तो आप लोग ऐसे आदमियों को गिरफ्तार क्यों करते हो? वाहवाही लूटने लेने के लिए या अपनी एसीआर अच्छी करने के लिए? If that is so, make a statement in public that we are not concerned about the security of the general public. We are just concerned about our ACRs. मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ सर, I will not put even a single question. Make a general statement. I will be more than happy.
आप ही को कोर्ट करूंगा और आगे बढ़ा दूंगा केस। बात करेंगे आप सीआरपीसी की, बात करेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करेंगे आप राइट्स की, और जब आपसे पूछ लें कि व्हेन यू आर एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी क्या किया है, तो आप लोग चुपचाप खड़े हो जाते हो। और आपने तो इतना भी ध्यान नहीं दिया कि हाईकोर्ट से ऑर्डर है। जरा डायरी तो खोल के देख लूं। चलिए अब आप बताइए कितने साल लगेंगे आपको? सर 10 days सर। Then I will not give any time. Then I will hand it over to the CBI directly with a specific finding that people have failed to execute the warrant. Right? 4994/2024. ये जरा रोजनामचा सारा पढ़िए। मुझे सूचना उप निरीक्षक संजय गुर्जर से नहीं, आप मन से पढ़ लीजिए, उसमें जरूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपने जो काम किया है वो पब्लिकली जाए, क्योंकि आप यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द, सो आई डोंट वांट दैट इट शुड बी रेड आउट इन द पब्लिक। आप बस इतना पढ़िएगा। पढ़ लिया आपने? आप अकेले गए थे? निष्णात आरक्षक था, एक आरक्षक भी गया था, बस आप 2 जन गए थे जी। लग रहा मेरे को, लग रहा मैं आई कैन नॉट से विद सर इट सीम्स सो सर। लग रहा है। तो जब सब कुछ वहां हो रहा था तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ कैसे बनाया गया दूसरे इंक से? गवाहों के इंक की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि विटनेस माइट हैव यूज्ड देयर ओन पेन। तो गवाहों के इंक के सिग्नेचर दूसरे इंक में है, तो दैट कैन नॉट बी एनी फैक्टर टू डाउट दैट डॉक्यूमेंट। आप जैसे सपोज आप भी सिग्नेचर करेंगे, हो सकता है आप अपने पेन से करें, मैं अपने पेन से करूं, तो देयर इज नो कंपल्शन दैट इट शुड बी साइंड बाय द सेम। ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एक इंक में और कुछ डॉक्यूमेंट्स दूसरे इंक में? हरकतें वही है ना, खाली छोड़ के आ जाओ। साइन कर दो, बना लेंगे। तो इंक्वायरी से, विवेचना से आप क्यों डर रहे हो? जो काम आप रोज सुबह शाम उठते बैठते करते हो, अगर वही अब आपके खिलाफ शुरू हो गई है, तो अब आपकी सांस क्यों ऊपर नीचे होने लग गई है? कानून ये कहता है कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है, रिपोर्ट मतलब जो शिकायतकर्ता ने एफआईआर लिखाई है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसमें खात्मा लगाने। और सिर्फ उसको इन राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जा रहा है, इसका ये मतलब थोड़े है कि भाई आप दोषी पाए गए। अगर रिपोर्ट आएगी कि आप ये बिल्कुल एक ही इंक है, पेन अलग अलग नहीं है, कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा शक बेबुनियाद निकलेगा, बस कहानी खत्म। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।